Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Ali Rana from Ghulamane Abbas School. Today in this video lecture we are going to perform another experiment from our class 10 AKUEB practicals. Let's see the objective of our today's experiment. We have to prove that time period of a simple pendulum is independent of mass of the pendulum and amplitude of the pendulum. So for this we have an observation table. First of all, we will prove the independence of mass of the pendulum on the time period of the pendulum. So first of all, let's see the observation table, in which we will have three different types of bobs that will be used to make our pendulum. We have iron bob, we have brass bob and we have aluminum bob. And these three bobs will have three different masses. So we will measure the mass of these bobs with the help of digital balance. Then we will make these we will use these bobs to make the simple pendulum, and we will vibrate or we will use this pendulum to make 10 oscillation or 10 vibration. We will measure three different times and we will take the average of this time, and finally we will divide this time of 10 vibrations with 10 to get the time of one vibration, that is known as time period. So इस तरह से हम अपने practicals को perform करेंगे. So इस table को complete करने से पहले let's come to our apparatus. So let's come to the apparatus that we are going to use in this experiment. So first of all, we have this iron strand through which we will hang our simple pendulum. Then we have a piece of thread that will be used to make our simple pendulum, and we have three different types of bobs. One is aluminum bob, the other one is brass one, and the last one is the iron bob. With these three different bobs, we will make three different pendulums of different masses. So then we have a stopwatch to measure the time of 10 vibrations. Then we have a meter scale, and we will use this meter scale to measure the length of our simple pendulum. And we have our physical balance or digital balance that we will use to measure the mass of these three bobs. So let's start our working of this experiment. So first of all, we will take these three bobs and measure the mass of these three bobs. So सबसे पहले हमारे पास ये आयरन का बॉब मौजूद है. इस आयरन के बॉब को हम अपने डिजिटल बैलेंस के ऊपर प्लेस करेंगे और उसका हम मास मेजर करेंगे. So for this iron bob, its mass is 29 ग्राम. हमने जो टेबल फॉर्म किया था उस टेबल के ऊपर भी हम इसका मास को नोट कर लेंगे. देन हमारे पास ब्रास का बॉब था और उस ब्रास के बॉब को प्लेस करेंगे इस डिजिटल बैलेंस के ऊपर. सो द मास ऑफ दिस ब्रास बॉब इज अराउंड 33 ग्राम. सो इस रीडिंग को भी हम अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल के ऊपर नोट कर लेते हैं. फाइनली वी हैव दिस एल्यूमिनियम बॉब, और इस एल्यूमिनियम बॉब को हम प्लेस करते हैं. So प्लेस करने के बाद the mass of this aluminum bob is around 14 ग्राम. तो हमने तीनों बॉब्स के मास को मेज़र कर लिया. So let's place this digital meter aside. अब हम अपने सिंपल पेंडुलम को फॉर्म करते हैं. तो सबसे पहले हम अपना आयरन का बॉब ले लेते हैं, एंड वी हैव अ पीस ऑफ थ्रेड. तो इस पीस ऑफ थ्रेड को के एक एंड पे हमने पेंडुलम को बॉब को प्लेस करना है, टाई करना है, और दूसरे एंड को हम इस आयरन स्टैंड के साथ हैंग कर देंगे. सो ये हमने जो है वो मेटल के आयरन के बॉब को थ्रेड के एक एंड के साथ टाई कर दिया, और दूसरे एंड को हम यहाँ मेटल के स्टैंड के साथ हैंग करके 10 वाइब्रेशंस का टाइम नोट करेंगे. सो before doing this, let's measure the length of this simple pendulum. So for this we are using this meter scale. So let's find the length of this simple pendulum.
and it is 65.3 सेंटीमीटर. सो हम अपने पास ऑब्जर्वेशन टेबल में भी इस बात को नोट कर लेंगे कि इसका जो टोटल लेंथ है इट इज 65.3 सेंटीमीटर. सो इसको भी हम साइड में प्लेस कर देते हैं. देन इस पेंडुलम का जो दूसरा एंड है उसको हम अपने मेटल के स्टैंड के साथ हैंग कर देंगे और हैंग करने के बाद वी विल टेक द टाइम ऑफ 10 वाइब्रेशंस. सो फॉर दैट वी हैव आवर स्टॉप वॉच और इस स्टॉप वॉच से हम 10 वाइब्रेशंस को काउंट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट दिस 10 वाइब्रेशंस विद आवर आयरन बॉब. सो इसको करने से पहले हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो बेस ऑफ द पेंडुलम है वो ग्राउंड को टच ना करे. तो उसके लिए हम इस पेंडुलम को थोड़ा सा हाइट प्रोवाइड कर देते हैं ताकि ग्राउंड को टच ना करे. चलिए तो दोबारा से स्टार्ट करते हैं. हमने उसको स्लाइटली डिस्प्लेस किया और स्लाइटली डिस्प्लेस करने के बाद उसको हमने रिलीज करना है और 10 वाइब्रेशंस को काउंट करना है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So we have the total 10 vibration and the total time is 15.90 seconds. So हमारे पास फर्स्ट वाइब्रेशन आ गया, फर्स्ट टाइम आ गया 10 वाइब्रेशंस के लिए, जिसे हम अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल में साथ साथ नोट करते जाएंगे. सो वंस अगेन फॉर द सेम मास एंड सेम लेंथ हम 2 बार और इसी ऑब्जर्वेशन को रिपीट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट दिस ऑब्जर्वेशन वंस अगेन. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So we have 10 vibration and the time for the 10 vibration is 15.95 seconds. So इस और टाइम को भी हम अपने पास नोट कर लेते हैं. So for this iron bob we will repeat this experiment for the last time. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So we have 10 vibrations and the time for the 10 vibration is 15.97 seconds. तो ये हमारे पास आयरन बॉब के साथ हमने 3 ऑब्जर्वेशंस को रिपीट कर लिया. अब हम क्या करेंगे, हम इस मास को चेंज करेंगे और इसकी जगह एक और मास इसके साथ अटैच कर देंगे. तो लेट्स replace this iron bob with the brass one. Okay, so we have another pendulum जिसकी लेंथ तो सेम है बट इसके साथ जो मास अटैच किया हमने वो बिल्कुल डिफरेंट है, जो कि हमने आयरन का मास यूज़ किया था. नाउ वी हैव अ ब्रास पेंडुलम जिसका मास हमने 33 ग्राम मेज़र किया था. अब हम इसी तरह से 10 वाइब्रेशंस 3 टाइम्स इसकी 10 वाइब्रेशंस का टाइम हम नोट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस ब्रास बॉब. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. So we have 10 vibrations and the time for the 10 vibration is 15.83 seconds. So ये हमारे पास फर्स्ट वाइब्रेशन फर्स्ट रीडिंग आ गई. देन हम इसी तरह से 10 वाइब्रेशंस के लिए एक और बार रीडिंग नोट करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So we have another 10 vibration time for this bob brass and this time the total time is 15.63 seconds. So for one last time we will take the time for the 10 vibrations. So let's start with this brass bob.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. So we have the time for 10 vibration, that is 15.69 seconds. तो इस तरह हमने इस ब्रास के बॉब के साथ 3 times 10 वाइब्रेशंस का टाइम नोट किया. अब हमें क्या करना है? वी हैव टू रिपीट द सेम एक्सपेरिमेंट विद दिस एल्यूमिनियम बॉब. तो हम उसी तरह से इस पेंडुलम को यहाँ से डिस्पैच करके इसके दूसरे एंड पे इस ब्रास के बॉब को रिप्लेस कर देते हैं विद द एल्यूमिनियम बॉब. बट कीपिंग इन माइंड दैट द टोटल लेंथ ऑफ द पेंडुलम शुड रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट आवर एक्सपेरिमेंट. तो हम इसे यहाँ से रिप्लेस करते हैं. Okay, so we have our third pendulum with the same length but different mass. उसी तरह से हम 3 times अपनी ऑब्जर्वेशन को रिपीट करेंगे विद टोटल ऑफ 10 वाइब्रेशन. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस एल्यूमिनियम बॉब. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. So we have the time for the 10 vibration of this aluminum bob, that is 15.78 seconds. तो ये हमारी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हो गई. बिल्कुल इसी तरह से अब हम सेकेंड ऑब्जर्वेशन लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So we have got the time for the 10 vibration, that is 15.79 seconds. तो ये हमारी second observation हो गई with this aluminum bob. So we have the last observation left with this aluminum. So let's start with this aluminum bob. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So we have got the time for 10 vibration with this aluminum bob, that is 15.87 seconds. तो यहाँ हमने जो है वो with 3 different bobs और with 3 different masses we have performed 10 vibrations, जिसे हमने अपने observation table में नोट किया. तो अब चलते हैं अपने observation table की तरफ. Okay, so here we have our observation table, जिसमें हमने 3 different bobs यूज़ किए for making our simple pendulum, जिसके masses हमने डिजिटल बैलेंस की मदद से नोट किए थे 29 ग्राम, 33 ग्राम एंड 14 ग्राम. सिमिलरली हमने इन बॉब्स को यूज़ करके 3 times वाइब्रेशन का टाइम नोट किया था. तो ये हमारे पास वो टाइम फ्रॉम आवर एक्सपेरिमेंट हमने यहाँ नोट कर लिए. देन हमारे पास जो सेकंड लास्ट कॉलम था, जहाँ हमें एवरेज टाइम नोट करना था, सो हमने इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करके 3 से डिवाइड किया फॉर our average time of 10 vibrations. So the average time for 10 vibration of iron bob is 15.94 seconds, and for brass the average time for 10 vibration is 15.71, and for at last the average time for aluminum bob for 10 vibration is 15.80 seconds. So finally जब हमें time period calculate करना है, that means the time for one vibration we will divide this value with 10, बिकॉज हमने 10 वाइब्रेशंस ली थी. तो एक वाइब्रेशन का टाइम मेजर करने नोट करने के लिए हम इसे 10 से डिवाइड कर देंगे. सो 15.94 डिवाइडेड बाय 10 इज 1.594. Similarly 15.71 divided by 10 is 1.571, and finally 1.580 is the time period of simple pendulum with aluminum as our bob.
सो अब हम इसको थोड़ा सा एनालाइज कर देते हैं कि हमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, टू प्रूव दैट टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द पेंडुलम। तो यहाँ हमारे पास 3 डिफरेंट मासेस थे, मास की वैल्यूज डिफरेंट थी, 29 ग्राम, 33 ग्राम एंड 14 ग्राम। बट अगर हम इनके टाइम पीरियड्स को देखें, द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम विद आयरन बॉब इज 1.59, सिमिलरली 1.58 विद दिस brass bob and 1.58 with this aluminum bob। इस रीडिंग से हम ये एनालाइज कर रहे हैं कि मास के चेंज होने से इस सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। द मास ऑफ द पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट और द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द पेंडुलम। सो हियर वी हैव आवर सेकंड पार्ट ऑफ आवर एक्सपेरिमेंट, जिसमें हमने ये प्रूव करना है कि टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम is independent of the amplitude of vibration। सो इस प्रैक्टिकल को भी बिल्कुल उसी तरह से हम परफॉर्म करेंगे, जिसमें हम सिर्फ एक मास कांस्टेंट रखेंगे, सेम बॉब के साथ हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे और इस बार जो हमारी लेंथ है पेंडुलम की वो भी सेम रहेगी। तो हमने ये 3 डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स, एक आर्बिटरी रैंडम वैल्यूज ले लिए और इस पर हम वाइब्रेट करके हमारे पेंडुलम को वाइब्रेट करके 3 टाइम्स टाइम नोट करेंगे और फाइनली उसका टाइम पीरियड मेज़र करेंगे। सो अब चलते हैं हम अपनी परफॉर्मेंस की तरफ कि हम किस तरह से एम्पलीट्यूड को चेंज करके टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ हमारे पास एक आयरन बॉब मौजूद है जो कि हमने फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रैक्टिकल के अंदर यूज़ किया था। सो द लेंथ विल रिमेन सेम, द मास ऑफ द बॉब विल रिमेन सेम। लेंथ जो हमने यूज़ किए थे इट वॉज 65.3 सेंटीमीटर्स एंड 29 ग्राम मास ऑफ दिस आयरन बॉब। तो अब हमें क्या करना है, दिस रेस्टिंग पोजीशन ऑफ द पेंडुलम इज आवर मेन पोजीशन। तो हम इस पेंडुलम की मेन पोजीशन को मार्क कर देते हैं कि ये हमारे पेंडुलम की मेन पोजीशन है। सो दिस इज आवर मेन पोजीशन ऑफ आवर सिंपल पेंडुलम। मेन पोजीशन के बाद हमें 3 डिफरेंट पोजीशंस पर मार्क करने हैं, दैट इज 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर्स एंड 9 सेंटीमीटर्स। सो हम यहाँ मार्क कर देते हैं। तो यहाँ हमने 3 डिफरेंट पोजीशंस तक मार्क कर दिए। अब हम क्या करेंगे, पेंडुलम को डिस्प्लेस करेंगे टू 3 सेंटीमीटर्स। देन सेकेंड पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट में हम उसे 6 सेंटीमीटर तक डिस्प्लेस करके वाइब्रेट करवाएंगे एंड फाइनली हम उसे 9 सेंटीमीटर तक वाइब्रेट करवा के इसका 10 वाइब्रेशंस का टाइम नोट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे 3 सेंटीमीटर्स तक डिस्प्लेस करूँगा और इसका टाइम नोट करूँगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. So the time for 10 vibration is 16.03 seconds. इसी तरह से 3 सेंटीमीटर्स पर हम 2 और टाइम की मेजरमेंट्स लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So the time is 15.88 seconds. इसी तरह से वन मोर टाइम हम इसका टाइम मेज़र करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. So the time for 10 vibration is 15.97 seconds. तो इस तरह हमने 3 times 10 vibration का टाइम नोट किया at 3 सेंटीमीटर ऑफ एम्पलीट्यूड। अब यही काम परफॉर्म करेंगे। द मास विल रिमेन सेम, द लेंथ ऑफ द थ्रेड विल रिमेन सेम, बट एम्पलीट्यूड अब हम इस फर्स्ट मार्क के बजाय सेकेंड मार्क तक डिस्प्लेस करके इसका एम्पलीट्यूड टाइम पीरियड मालूम करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद 6 सेंटीमीटर of amplitude. 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So the time for 10 vibration is 15.96 seconds. Once again हम उसे 6 सेंटीमीटर तक डिस्प्लेस करते हैं और दोबारा से टाइम नोट करते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So time is 16.09 seconds. वन लास्ट टाइम हम उसे 6 सेंटीमीटर से दोबारा डिस्प्लेस करते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So the time is 15.97 seconds. तो ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट पे 3 बार हमने इसे 10 वाइब्रेशंस का टाइम नोट कर दिया. सो फाइनली अब हम लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जिसमें अब हमें इसे 9 सेंटीमीटर की डिस्प्लेसमेंट देनी है और इसका 10 वाइब्रेशंस का टाइम नोट करना है. सो लेट्स स्टार्ट विद 9 सेंटीमीटर ऑफ एम्पलीट्यूड. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So the time is 16.00 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So this time once again the time for 10 vibration at 9 centimeter of displacement is 16.00 seconds. Once again last time हम इसे दोबारा से वाइब्रेट करते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So the time for 10 vibration at 9 centimeter of amplitude is 16.13 seconds. सो ये हमारी ऑब्जर्वेशन आ गई जो हमने एम्पलीट्यूड के साथ फॉर डिफरेंट एम्पलीट्यूड एंड सेम मास एंड लेंथ ऑफ द पेंडुलम इसे परफॉर्म किया. 3 सेंटीमीटर्स पे ये हमारी रीडिंग्स थी. 6 और 9 सेंटीमीटर्स पे कुछ इस तरह से 10 वाइब्रेशंस की रीडिंग थी. देन हमने क्या किया, इन टाइम्स का एवरेज फाइंड आउट किया है. और एवरेज कैसे फाइंड करते हैं, हमने इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दिया फॉर टेकिंग द एवरेज टाइम फॉर 10 वाइब्रेशंस. सो एट 3 सेंटीमीटर एवरेज हमारे पास 15.96. एट 6 सेंटीमीटर एवरेज हमारे पास आया 10 वाइब्रेशन का 16 सेकेंड्स. और फाइनली एट 9 सेंटीमीटर्स ऑफ एम्पलीट्यूड द एवरेज टाइम वॉज 16.04. तो ये हमारे पास 3 टाइम्स हैं फॉर 10 वाइब्रेशंस. अब हमें क्या करना है, हमें टाइम पीरियड मालूम करना है फॉर 1 वाइब्रेशन. तो 1 वाइब्रेशन के टाइम के लिए हम इस 10 वाइब्रेशन के टाइम को 10 से डिवाइड कर देते हैं. सो आवर रिजल्ट वुड बी 1.596, 1.600 एंड 1.604. सो ये हमारा कुछ टाइम पीरियड आ रहा है फॉर डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स ऑफ द वाइब्रेशन. सो अगर हम गौर से देखें, एनालाइज करें अपने डेटा को, सो हम इस रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं कि अगर हम एम्पलीट्यूड चेंज करते हैं एक सिंपल पेंडुलम का बाय कीपिंग लेंथ एंड मास कांस्टेंट, सो टाइम पीरियड के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता. और अगर हम अपने ऑब्जेक्टिव को देखें इस प्रैक्टिकल के, जिसमें हमें इसी बात को प्रूव करना था कि अगर हम एम्पलीट्यूड को चेंज करते हैं सो द टाइम पीरियड विल रिमेन अनचेंज. तो इस ऑब्जर्वेशन टेबल से हमने फाइनली ये रिजल्ट निकाला दैट द time period of our simple pendulum is independent of amplitude.
So this is it for today's class. Inshallah, I will see you in the next video lecture with another practical from our AQAB practical list. Till then, this is Muhammad Ali Rana taking off from this class. Allah Hafiz. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to